الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا حقیقی مستحق وہی ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جو تمام جہان والوں کے لیے مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہے، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے. اسلامی بھائیوں، خانگی زندگی اور عائلی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. پچھلے خطبے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب رشتے کی بات مکمل ہو جائے تو لڑکے والوں کو یہاں تک گنجائش ہے کہ وہ، بلکہ لڑکے کو بھی اتنی گنجائش ہے کہ جہاں پہ اس کا رشتہ لگ رہا ہے، جس لڑکی سے رشتہ لگ رہا ہے، یا لڑکی کو بھی گنجائش کچھ لوگوں نے دی ہے کہ اس کو بھی اجازت ہے کہ جس لڑکے سے اس کا رشتہ لگ رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر باتیں بھی کرنا چاہیں تو گھر والوں کی موجودگی میں باتیں بھی کر سکتے ہیں. اب جب رشتہ طے ہو جاتا ہے بہت سادگی کے ساتھ جو اسلامی تعلیمات ہیں، پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بات چیت کر کے نکاح پڑھا لیں. اگر نابالغ ہے تو صرف نکاح پڑھا لیں، رخصتی تو سب ہو نہیں سکتی ہے. نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح تو جائز، اس وقت اجازت بھی نہیں لینی پڑے گی. اس وقت لڑکے یا لڑکے کا ولی، لڑکا نابالغ ہوگا تو اس کا بھی ولی ہونا چاہیے. اگر بالغ ہے تو ولی کی شرط نہیں، لیکن لڑکا اگر نابالغ ہے تو اس کی طرف سے بھی ولی ہونا شرط ہے. اور لڑکی اگر نابالغ ہے تو ولی تو ہونا ہی ہے، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ. لڑکی میں تو ہر حال میں ولی ہوگا. بس فرق یہ ہے کہ نابالغ لڑکی کا شادی اگر ہم کر رہے ہیں تو صرف نکاح پڑھا سکتے ہیں، اور اس وقت اس کی اجازت ضروری نہیں. ولی اپنے نابالغ بچی کا نکاح بنا اس کی اجازت کے کر سکتا ہے. بالغ ہے تو اجازت لینی پڑے گی. صرف نکاح کر سکتے ہیں، رخصتی بلوغت کے بعد کرنی پڑے گی. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بالغ ہے پہلے ہی سے تو چاہے تو ہاتھ کے ہاتھ نکاح پڑھا کے رخصتی کر دیں، یا نکاح پڑھا لیں، بعد میں جب طے ہو جائے تو رخصتی کر دیں. سیدھی سی بات ہے. اب ہمارے ہاں جو دھما چوکڑی شروع ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ بیسیوں رسم، ابھی رخصتی سے پہلے پسند آ گئے ایک دوسرے کو، بیسیوں رسم ادا کرتے ہیں. ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے انسان ان رسموں کو نبھانے میں، اور یہ مطلب شوق مجبوری بن گئی. جو پہلے نو دولتیوں کی یا نئے جو جن کے پاس پیسے آئے تھے اور مواقع تو ہے نہیں، جو نئے پیسے والے ہوتے ان کو اور موقع تو نہیں ہوتا ہے اپنی شان دکھانے کا، اپنی معیار اسٹیٹس دکھانے کا. تو یہ وہ بہتر موقع اس کو تصور کرتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، اس مرتبہ دکھا دو اپنی حیثیت. اب جو غریب ہے بیچارہ وہ لاج میں یا اپنی بیٹی کے خوشی دیکھنے کے لیے
बहुत सारी चीजें मजबूर होकर करता है। जो अमीरों ने शौक से किया उसको मजबूर होकर करना पड़ता है, जैसे समाज में चीजें फैल गई। 20 और रस्म, और आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन लोगों ने कई शादी के देख है कितनी परेशानियां होती है अगर सादगी से करना चाहे तो। इतने उसमें अब जब पसंद हो गया उसके बाद तो डायरेक्ट निकाह और रुखसती का मामला था, लेकिन उसके बाद नहीं, अब मंगनी करने के लिए आएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये सबको पसंद है, मंगनी का क्या। किसी जमाने में ठीक है जब रास्ते के उतने मौके नहीं थे, चलो ठीक है, जब तक हम नहीं जाएंगे दूर रिश्ता लगा दिए। अब जब तक घर नहीं जाएंगे जब तक कैसे बात करेंगे कि भाई चलो फला दिन मुनासिब रहेगा, आकर के रुखसती करा लो। अब तो आप हर हाथों में मोबाइल है, अब तो फोन पे भी बात कर सकते हैं कि भाई फला तारीख हमारे तरफ से मुनासिब लग रहा है, आप बताओ आप उस दिन फ्री हो कि नहीं, यहाँ रहो कि नहीं रहोगे, बातें हो जाए तो बस फोन पे बातें हो जाए। जब सब कुछ देख लिया, लड़का आपने लड़के को देख लिया, उसका घर देख लिया, लड़के वालों ने लड़की देख ली, सब कुछ देख लिया, बीच में क्या रह गया, निकाह रुखसती डायरेक्ट रह जाती है। लेकिन नहीं, उससे पहले भी पता नहीं कितना मंगनी है, फिर वो हल्दी का रस्म है, फिर मेहंदी का रस्म है, वो उधर से आएंगे इधर से आएंगे, उसमें आके अंगूठी पहनाएंगे, अंगूठी सोने की, मतलब औरत को तो फिर भी जायज है कि सोना पहने, और उस वक्त मर्द को आकर के निकाह मंगनी के टाइम सोने की अंगूठी, हर कोई जानता है इतना बड़ा मसला कि मर्द पर सोना हराम है। और वैसे भी ये रस्म की अंगूठी उस वक्त पहना है मंगनी के टाइम शौहर को या नहीं अभी दूल्हे को जो बनने जिससे शादी होने वाली है, ये तो वैसे भी जायज नहीं, किसी भी सूरत में रस्म के तौर पे भी जायज नहीं, और रस्म में भी हराम और दाखिल कर रहे हैं, सोना दे रहे हैं मर्द को, जबकि अल्लाह तबारक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है, तो हराम में हराम दाखिल कर रहे हैं। उसके अलावा पता नहीं कितने रस्में होती है, हल्दी लगाने की, मेहंदी लगाने की, और उसी में इतना खर्चा कर देते हैं बास पैसे वाले कि उतने में कई गरीब बच्चों की शादियां हो जाएंगी। मेहंदी और हल्दी के रस्म में भी डांस चल रहे हैं, कुमकुमे चल रहे हैं, सारी चीजें होती है, जैसे लगता है कि शादी है। छोटे छोटे फंक्शन को पैसे वालों ने इतना ज्यादा समाज में उसको बढ़ा दिया, और कम पैसे वालों की भी गलती है, जिनकी हैसियत नहीं थी जबरदस्ती क्यों नकल करें। भाई इस्लाम तो उनके लिए भी है, सादगी है, सादगी को अपनाएं, क्यों दूसरे की नकल करें। अगर वो गलत कर रहा है, कोई इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो हम क्यों उसका तरीका अपनाएं। कि अल्लाह उसके रसूल का तरीका, नबी का तरीका, साहबा का तरीका काफी नहीं है हमारे लिए। उसी में आसानी है, उसी में सादगी है, उसी में रहमत है, उसी में खैर बरकत है, और उसी में सुकून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अपनी बच्चों बेटियों की शादियां की, जब बात आएगी बाद वाले खुद में देखिएगा कितनी आसानी से रुखसती करा दी बीवियों से। हजरत सौदा वगैरह का जब हजरत खदीजा की बात आई पिछले खुतबे में, कितनी आसानी से, लेकिन नहीं, हम आसानी चाहते नहीं, बाद में परेशान होते हैं। ये रस्में, जो पैसे इन रस्मों में खर्च हो रहे, इंसान के दिमाग को पहले ही से सवार होता है, पहले ही से सवार होता है कि 10 लाख कम से कम 15 लाख 12 लाख पैसे लगने हैं। अब वो इकट्ठा करना अपने कमाई में से, अपने बेटों की कमाई में से, वो जो खून पसीने की कमाई है वो यूं ही ऐसी चीजों में लुटा रहा है जिसका एक पैसा भी सवाब नहीं, 1% भी सवाब नहीं, बल्कि गुनाह मिलता है। इन रस्मों में लुटाने से अपनी हलाल कमाई और गुनाह का खतरा होता है। जो हमने खून पसीने कमा के और सदकात खैरात जो देने चाहिए थे, वो हाथ रोक करके, रिश्तेदारों के, गरीब रिश्तेदारों को हक था उनमें, उनके हक रोक करके, बच्चों की तालीम और तरबियत का हक था, उनका हक रोक करके, वो कीमती पैसा जो बच्चों के मुस्तकबिल पे खर्च होना चाहिए था, उनकी कौम की तामीर और उनके मुस्तकबिल बनाने पर खर्च होना चाहिए था, वो गलत रस्म रिवाज के हद से चल रहा है। वो दिमाग पे सवार होता है 4 साल बाद शादी करनी है, और ये पैसा भी जोड़ने शुरू होते हैं। दवाई नहीं कराते अच्छे बच्चों की, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं करवा पाते। अगर यही चीज खत्म हो जाए, ये 15-20 लाख का जो भूत सर पे सवार है शादी का, तो वो बच्चों के तालीम पे खर्च होगा, वही बच्चे कौम का मुस्तकबिल बनेंगे। तालीम में पिछड़े होने की एक बड़ी वजह, कई वजूहात हो सकती है, लेकिन एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमने वो पैसे जो अपनी कमाई के जोर पर बच्चों की अच्छी तालीम पे खर्च करनी चाहिए थी, उसमें से हमने कटौती की, और उनके तालीम पे बाद लोग तो पढ़ाते ही नहीं है। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो उसको भी लगा देते हैं, बहन की शादी करनी है, तुम्हारी बेटी की शादी करनी, तुम भी चलो काम करने के लिए। वो पढ़ सकता था, उसको पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, पूरे घर वालों को लगा दिया उसी जहेज के डिमांड पूरा करने के लिए, और ये गलत रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए, जो दूर दूर तक इस्लामी नहीं है, जो दूर दूर तक शरई नहीं है। एक सीधा साधा इंसान, संजीदा इंसान भी गलत कहेगा, जो इस्लाम के अलिफ का मालूम पता भी ना हो, वो भी कहेगा ये सारी चीजें गलत है, कौम पर बोझ है, गरीबों के लिए दर्दसर है वो पैसा। पड़ोस में एक मुल्क है, उसमें एक गांव है, सर्वे में आता है, वो हमारे हिंदुस्तान के कोई गांव ऐसा नहीं आया, लेकिन पड़ोस में एक मुल्क है, उसमें एक गांव है जहां के लोग 99% लोग आला तालीम याफ्ता हैं। जब सर्वे कराया गया उस गांव का, क्या बात है, गांव है, शहरों के मौके ज्यादा होते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं, ये चीज तो उनके पास होनी चाहिए थी, ये इस गांव में कैसे है। वहां सर्वे कराया गया, पता चला कि वहां ये शादी और ये जितने गलत रस्म रिवाज है कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से शादी होती है, कोई दबाव नहीं, 1500 2000 जितना हो जाए, कोई दबाव और कोई नहीं, बिल्कुल दो चार लोग, एक दो लोग जाके निकाह पढ़ा लेते हैं, दो चार लोग जाकर रुखसती करा लिए, बस बिल्कुल जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते थे वही सब लोग करते हैं। और किसी भी मामले में वो इसराफ के शिकार नहीं, फजूल खर्ची के, वो कमाते हैं। और ये आज से नहीं, कई सालों से उन्होंने इसमें मेहनत की। अब वो पैसा जो हम लोग गलत रस्म रिवाज पे खर्च करते हैं, उन्होंने तालीम पे खर्च की, और सारे लोग, अक्सर 99% लोग पढ़े लिखे और आला ओहदों पे पहुंच गए। वो पैसा तो वो एक मिसाल है, वो किसी हमारे और आपके साथ भी अगर हम वो तरीका अपनाएं, उस गांव में मदरसा भी है, मदरसे की बरकत भी है, उन लोगों ने बाइकाट का तरीका अपना रखा है कि अगर कोई इससे हटने की कोशिश करता है, ज्यादा अपने पैसे के शान दिखाएगा, बारात बुलाएगा या फिर ये है कि रस्म रिवाज, तो कोई जाएगा ही नहीं गाँव का, अकेला पड़ जाता है। एक दो लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वो अकेले पड़ गए, कोई गया ही नहीं, अकेला उससे कुर्सियां रखी रहेंगे, एक आदमी गाँव का नहीं गया। तो उस मदरसे में जो यहाँ अहले हदीस मदरसा भी है गाँव में, तो उसका भी असर है, उलमा का असर है, उनकी सोहबत का असर है लोगों को, कि उन्होंने वो इतना आगे निकल गए कि वो गलत रस्म और रिवाज का पैसा बचा करके। तो ये बात छोटी सी लगती है, यूं ही सरसरी सी बात कहने में लगता है छोटी सी बात, लेकिन अगर हर आदमी गौर करे तो ये इस नतीजे पे पहुंचेगा कि ये पैसा जो हम इसमें उड़ा रहे हैं, अगर बच्चों की तालीम पे लगाएं तो हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल बनेगा, और उसके जरिए से कौम की भी मजबूती आएगी, कौम का भी तामीरी रुझान आगे बढ़ेगा। अब उस वक्त भी चलो कुछ लोग रुखसती कराने गए, वहां पे देखें जब गैर शरई तौर पर शादियां होती हैं तो कई बार ऐसा होता है गए खाना खाए और रुखसती से पहले ही रुखसती करा नहीं पाए, धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े हो गए, वापस आने पड़े, इसलिए कि तो गैर शरई तरीका है, तो उसमें जाहिर सी बात है अल्लाह ताला उसमें सुकून है ही नहीं, और उसमें खैर बरकत भी नहीं है। कई जगह लड़ाई होती है, खूब मोटा दहेज ले लिया, मांग लिया, अब कभी मेहंदी पिसाई के नाम पे लड़की वाले भाई उसने खूब मोटा पैसा मांगा दिया है, 1 लाख मेहंदी पिसाई दो, इतना ये दो, बहुत पता नहीं कितना डिमांड लेके आ जाते हैं, इसको देना, हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ चलता है। और दूल्हे के आंगन में जूता चुराई, पता नहीं कितना कितना, एक अलग अलग रस्म पैसे हटने के बना लिए हैं, जो बहुत सारी चीजें, ये फजूल खर्चे तो है ही है, इसमें बेपर्दगी और उरियानियत भी है। देखें अब घर की वो लड़कियां जिनके लिए महरम है सामने आ नहीं सकती हैं, वो आकर के कोई मेकअप कर रहा है, कोई गुलाब जामुन खिला रहा है, कोई पान खिला रहा है, कोई और उसके साथ मजाक कर रहा है, टूटी चारपाई पे बिठा करके उसके सहबाला जाता है, पता बहुत घर के आंगन में ले जाते हैं, वहां मर्द कम होते हैं, औरतें ज्यादा होती है, सब घेरे रहते हैं, अजीब मोटे मोटे मजाक करते रहते हैं। गैर इस्लामी रिवाज जो हिंदुआना रस्म रिवाज है उनका पूरा देखेंगे तो लगता ही नहीं कि इस्लामी शादी है या किसी मुसलमान के यहाँ शादी है। और अजब तो ये होता है, ताज्जुब तो ये होता है कि जब वो एकदम सबके सामने ले आते हैं, सजा करके, जब दुल्हन को, अपनी बेटी को, जिसकी तरफ गैर महरम का देखना हराम है, उसको ला करके दिखाते हैं, सबके सामने बैठा देते हैं कुर्सी पर, देखो सारे लोग, मतलब इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये मैं कहता हूं ये वही लोग अपना सकते हैं जिनकी इस्लामी फितरत या इंसानी फितरत मस्त हो गई हो, वो तरीका अपना सकते हैं वहां पे जाकर के। इस तरह के रस्म रिवाज जहां पे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई झगड़े, कई बार तो कोर्ट कचहरी और कोतवाली तक के नौबत आ गए, हर साल 2-4 शादियां ऐसे सुनने को मिलती ही हैं कि भाई इसने मुंह मांगा मेहंदी पिसाई नहीं दी, मुंह मांगा दूल्हा का जूता चुराई नहीं दे, ये नहीं दे, वो नहीं दे, पता नहीं कितने रस्म रिवाज पाल रखे हैं, उसका मनफी रद्द अमल भी सामने आ रहा है। और क्यों ना आएगा, जो इस्लाम से हटेंगे तो उसमें बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। तो भलाई और सुकून अल्लाह उसके रसूल के इताअत ही में है। मैंने इसीलिए कहा है लोगों, मोमिनो, अल्लाह ताला ने कहा है मोमिनो अल्लाह के इताअत करो, रसूल के इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल को ज़ाया मत करो। अब जितना भी काम करेंगे सवाब तो मिलेगा ही नहीं, और उसका नुकसान अलग से दिख जाएगा। उसमें जाकर के बारात, बड़ी बड़ी बारात, अच्छा बाज ऐसा नहीं कि इसमें सारी गलती लड़के वालों की है, बाज ऐसा भी सुनने में आता है कि लड़की वाले भी कहते हैं कि भाई इतना बारात लेकर के आना, अगर कोई ना लेके तभी कहते इतना लेकर के आना ताकि लगे कि एक बड़ा कुंबा कबीला आदमी है जिसके हैं इतने, उनके यहाँ शादी किया है। इस तरह बाद लड़की वाले भी मुतालबा करते हैं लेके के आना, तो दोनों तरफ झोल है। मैं मानता हूं लड़के वालों की गलती ज्यादा, उनको नहीं ले जाना चाहिए था, या ऐसी जगह रिश्ता नहीं देखना चाहिए था कि हम सादगी से करना चाहते हो, इतना रिश्ता इतने लेकर के आओ और ये सब लेकर के आओ, तो पता नहीं कितनी रस्में उस टाइम के पूरे सामने रखे जाते हैं, वीडियोग्राफी की जाती है उनकी। चलो ठीक है, निकाह के वक्त अगर रिकॉर्ड के तौर पर थोड़ा सा फोटो खींच लिया, वीडियो बना ली रिकॉर्ड के तौर पर, आगे कोई मसला हो तो सबूत के तौर पर उतनी तक की गुंजाइश तो दी जा सकती है। अब पूरे की वीडियोग्राफी हो रही, सब बारी बारी दूल्हा दुल्हन के साथ जाके फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सारे सामान जो दिए गए हैं लेकर के आए हैं, तो सारा सजाया गया है सबके सामने, सब देख रहे हैं। ये सिर्फ जो खैर बरकत का अमल था, हमने सरासर दिखावा बना दिया, अपनी ताकत का मजहर
अपनी ताकत साबित करने के लिए जरिया बनाया, अपने जो हमारी पैसे हैं, आमदनी है, उसके रिया और नमूद और शोहरत का एक हमने जरिया बना लिया है। रात में करते हैं उसी दिखावे की, हमको लग रहा है कि ये उसी दिखावे की एक सोच होती है कि जो वलीमा दिन में हुआ करता था हम लोग रातों में करते हैं। भाई पटाखे भी फोड़ने हैं, कुमकुमे भी दिखाना है तो ज्यादा अच्छा लगेगा कुमकुमे में, ये सोच हम दिन में हम लोग बहुत कम निकाह करते होंगे। कारोबारी मशगूलियात शहरों में हो सकती हैं, लेकिन अब तो ये धीरे धीरे ये चीज आम पकड़ती जा रही है। शादियां अब रातों में लोग कर रहे हैं। दिन में क्या, दिन में छुट्टी के दिन नहीं कर सकते, हफ्ते में भी छुट्टी और दिन बीत कर सकते हैं, लेकिन शादियों में कुमकुमे दिखाना है ना, पटाखे वगैरह फोड़ने हैं, तो रात ही में मजा आएगा, दिन में मजा आएगा ही नहीं, तो रात को चुनते हैं। अजीब अजीब बना रखा है लोगों ने। महर जो वाजिब था, महर के टाइम यही 50 लाख खर्च करने वालों के लिए कहते हैं मेरे फातिमे कर दो। मेरे फातिमे का हिसाब है कितना है? मेरे फातिमे का हिसाब लगाइए, 500 दिरहम में, चलो उतना ही दे दे तो बहुत है। 50 लाख देने वाले जिसके नाम पर दो खानदान एक हो रहे हैं, और जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पास आ रही है, आपके एक नए खानदान के पास, नए लोगों के पास आ रही है, उसका दिल जोड़ने के लिए और उसको हदिये के तौर पर जो महर को वाजिब किया गया था, वहां पे आकर के हाथ तंग हो जाते हैं। 500 कर दो, वहां सादगी याद आती है, 1000 कर दें, और उसमें भी कभी कभी 4-5 हजार में भी कहते हैं मुअज्जल कर दो, बाद में देना है। मुअज्जल, एक मुअज्जल होता है हाथ के हाथ देना उसी दिन, तो होता है मुअज्जल बाद में देना। जब उनके खर्च देखिए और उनके वो सब इंतजाम देखिए, निकाह पढ़ाने कभी कभी जाइए, मैं तो कहता हूं ऐसे निकाह में नहीं जाना चाहिए। जहां पे ये हो उसका बाइकाट करना चाहिए, उलमा को भी बाइकाट करना चाहिए, काजी मुफ्ती को भी बाइकाट करना चाहिए। लेकिन अगर 2-4 लोग बाइकाट कर भी देंगे तो 100-200 रुपए वाले बैठे रहते हैं, 100-200 भी मिल जाए तो पहुंच जाएंगे निकाह पढ़ाने के लिए। बाइकाट ऐसी महफिलों का जहां बारात आए, जहां पे इस तरह के जहेज का मामला हो, जहां गैर शरई रस्म रिवाज हो, वहां कोई अइम्मा को, निकाह पढ़ाने वालों को नहीं जाना चाहिए। उस गुनाह में शरीक होते हैं, उनको हौसला मिलता है, उनको ये लगता है कि ये कुछ तो गुंजाइश इसमें, तभी तो इमाम साहब आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए, तभी तो ये आए हुए हैं, तो नहीं जाना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए ऐसी महफिलों का, ऐसी शादियों का जो गैर इस्लामी हो, गैर शरई हो। महर के टाइम हाथ तंग हो जाते हैं। महर जो वातुन निसा सदकातुहुन्ना नहीं कहा गया, उनको महर दो, वाजिबी हुक्म है, महर वाजिब है, याद रखें आप। और इस्तिताअत है तो जितनी इस्तिताअत के मुताबिक देना अफजल है, और पहले देना अफजल है। और मरते टाइम कहते हैं निकाह माफ कर दो, वो महर माफ कर दो, मरते टाइम माफ कराते हैं बाज़ लोग, उस टाइम देने की नियत होती नहीं है, अब दिखावा होता है। लिए खूब डिमांड कर लिए 20-30 लाख का, तो 1 लाख मेहर बांध दो, देने की नियत होती नहीं है। अब बचना भी है झगड़े से कि हाँ 2 लाख 3 लाख मेहर बांध दिया, देने की नियत है नहीं, वो बाद में कर दो। बाद में कौन देगा, क्यों मांगेगी बाद में? उस वक्त देना चाहिए जितना अल्लाह के रसूल। मेरे फातिमे 500 दिरहम, 132 तोला हुआ, 132 तोला चांदी का आप अंदाजा लगा लें आजकल 50,000, अब 132 तोला का मतलब 1 किलो से ऊपर हो गया, 40-40 हजार से ऊपर बैठेगा, उतना ही दे दे चले, ठीक, वो भी नहीं, वो 1500 में 1100 में 151, उस वक्त वो ताक नंबर ढूंढते रहते, 151 ले दो, 111 लिख दो, ये बहुत वो गलत है। इतना खर्च करके जिसको जो वाजिबी हक था वहां पे जाकर के हाथ तंग हो जाते हैं लोग, सही से बोलते नहीं, इनसे पूछ लो उनसे पूछ लो करके, हाँ लड़की से बात हो गई। जितना इस्तिताअत हो इस्तिताअत को देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इजाजत दी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तो कुछ खजूर के, जबकि कुछ नहीं थे, मक्का गए तो कुछ नहीं था, नया नया कारोबार शुरू किए थे, सब कुछ लुटपुटा के गए थे। जब अल्लाह के रसूल ने जर्दी देखी तो कहा क्या, शादी की, कहा महर में क्या दिया। दूसरा सवाल यही था, बद्दुआ दियो, फिर कहा महर में क्या दिया, महर में दिया क्या, ये भी नहीं कहा कि मुझे नहीं बुलाया। साहबे किराम के सबसे अल्लाह के रसूल थे, अगर 1-2 को ले जाना चाहते तो ले जाते, शिकायत नहीं की। दुआ दिया, कहा महर में क्या दिया, तो कहा कि वो खजूर के बराबर, खजूर के गुठली के बराबर एक सोना दिया है। वो ठीक है, वो गुठली के बराबर भी कम से कम 20 ग्राम तो 30 ग्राम हो ही जाएगा, फिर भी बहुत है, ये महर दिया है। तो महर वाजिब है इस्तिताअत के हिसाब से, नहीं बहुत ज्यादा, अगर अल्लाह ने दे तो बहुत ज्यादा दे, लेकिन देने की नियत हो, माफ कराने की नहीं। वहां लोगों के सामने रुसवाई से बचने की नियत ना हो कि वाह हो जाएगी, देने की नियत हो, दें। और कुछ चीजें निकाह में अल्लाह के रसूल ने ऐसे कर दी जो हाथ दे भी नहीं जा सकते थे, वो बाद ही में दी जा सकती थी। जैसे वो उसमें देखिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किया तो उनके पास क्या था, महर में देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन महर चूंकि उस शरीयत में भी वाजिब रहा होगा, तभी उन्होंने कहा कि आपको 8 या 10 साल कहा, 8 या 10 साल कि इतने साल बकरियां चरानी, हमारे घर का काम करना पड़ेगा, वही महर होगा मेरी बेटी का, उसी के बाद निकाह करूंगा। इतने साल बकरियां चराई, जोड़ लें आप, दिहाड़ी जोड़ लें कितना पड़ जाएगी, दिहाड़ी से जोड़ लें, आज के 10 साल की दिहाड़ी जोड़ लें, वही महर था उनका। मतलब यह है कि लड़की को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाना है आपको, जो आपके पास है। आसान से आसान निकाह भी मिलते हैं, आसान से आसान महर, निकाह तो सारे आसान थे ही, महर कम से कम भी मिलता है। ऐसे नहीं कि महर जब आपके पास बहुत हो जाए तभी निकाह करें। एक ने कहा, एक से अल्लाह के रसूल कहा कि अल्लाह के रसूल हम उनसे निकाह करना चाहते हैं, कहा कुछ है देने के लिए,
تو کہا کچھ نہیں. کہا کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, غالباً والسماء والطارق والسماء ذات البروج, 2 صورتیں بتائیں. تو کہا کہ انکحتک ایاہ بما معک من القرآن, میں تمہارے نکاح اس کے ساتھ کر دے رہا ہوں اس کے عوض جو تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہے. کتنی آسان ہے. اور وہ ہاتھ کے ہاتھ یاد تو نہیں کرایا جا سکتا, یاد کرا دینا. یہ دونوں صورتیں تم اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا, یہی مہر ہے تمہارا. ایک کو بھیجے گا گھر پہ ڈھونڈ کے آؤ, کچھ ہے کہ نہیں, ڈھونڈ لے گا کچھ نہیں ہے. چاہے تمیز ولو خاتم من حدید, جاؤ ڈھونڈو, چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ مل جائے. لوہے کی انگوٹھی مطلب یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں مل جائے, کچھ تو ملے گھر میں. اب دیکھیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ گھر میں کچھ نہیں, پھر بھی نکاح کرنے کے لیے نہیں روک لینا. نکاح کرنا چاہے تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چلو کچھ پہلے انتظام کرا لو, راشن پانی کا, اور بھی کچھ نہیں. اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے جس وقت بھی, جس حالت میں بھی, تو وہ کر سکتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کہا جاؤ ڈھونڈو, نہیں تھا تو کچھ اور طریقہ اپنا. ایک کی چادر, ایک کے پاس تو چادر تھی, کہا آدھی چادر اس کو نہ پا کے, آدھی چادر تمہاری, آدھی چادر اس کی بیوی کی. دیکھیے ایک چادر میں بھی نہیں چھوڑا. اگر ہے کوئی چیز تو اس میں حصہ ہے مہر. کتنا اہم ہے مہر. اتنا لٹانے کے بعد بھی مہر تھوڑا سا رکھتے ہیں, یا زیادہ رکھیں گے تو دینے کی نیت نہ ہوگی, یا معاف کرا لیں گے. حیثیت کے حساب سے دیں. وہ ہونے والی بیوی ہے, اس کا دل جتنا اس کو حوصلہ افزائی ہے, ٹوٹا ہوا دل اس کا ہے, سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے غمزدہ, تو کم سے کم کچھ تو اس کو خوشی ہوگی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ مہر دیا. تو مہر ضروری ہے. مہر کے بعد جو معاملہ ہو جاتا ہے رخصتی کا, اگر ہاتھ کے ہاتھ رخصتی کا معاملہ ہے, رخصتی کے وقت کتنے واضح تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے ہیں اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے وقت کیسے کیا کیا ہے, اور رخصتی کرا کے اس کے بعد کا کیا عمل رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے خطبے میں باتیں ہوں گی. بہرحال یہ تفصیلی باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس لیے بھی کہ وہ ہر کسی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, اور میں ساری باتیں یہ سیرت ہی کی روشنی میں ہے. میں دلائل اگرچہ نہ ذکر کروں, بات کی لمبی نہ ہو جائے, میں جو اشارے کرتا جاتا ہوں یا پھر جو واقعات بتاتے جاتا ہوں, جو ترجمے بتاتے جاتا ہوں, یہ سب قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ہے. یہ کوئی اپنی بات نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات ہی کی روشنی میں سارے اشارے ہوتے ہیں. جو باتیں بتائی جائیں سمجھ لیجئے کہ وہ سیرت ہی کے حوالے سے ہیں, اور ہم کو اپنی شادیوں کو انہی سیرت کے رنگ میں رکھنا ہے, اسی سادگی کو اپنانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی, اپنانے کا حکم دیا, اور صحابہ کرام نے جو سادگی اپنائی, جو سادگی اپنا کر کے ان کے گھروں میں خیر و برکت آئی, وہ اس جھمیلے سے بچ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے, وہ نئے رشتے آباد ہوئے. جو طریقہ اپنا کر کے ہم ان طریقوں سے بچیں جو طریقہ خیر و برکت سے خالی ہے, جو طریقہ فضول خرچی لیے ہوئے ہے, جو شریعت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, جو اللہ کی حفاظت سے نکلا ہوا ہے, جو درد سر لیے ہوئے ہیں دونوں طرف, اور جو طریقہ جس میں امن و امان اور حفاظت کی گارنٹی بھی نہیں ہے شریعت کی طرف سے, سکون کی ضمانت بھی نہیں ہے, جو رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں, بکھر بھی سکتے ہیں, بکھرتے بھی ہیں, یہ ہم اور آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے اپنی صلاح کی تو یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی, اور ہم خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ابھی یہ چیز ہم تک نہیں پہنچی ہے تو ہم بچیں گے. یہ چیز ہر گھر تک پہنچے گی. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں سب. کوئی لوگ جس کے یہاں چلو کچھ رشتے اگر کامیاب ہو بھی جائیں غیر رسمی طریقہ اپنا کر کے, تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سب کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا, اور وہ کچھ نہیں, اگر رشتے مان لیا بنے بھی رہے, اللہ کرے سب کے رشتے بنے رہے, لیکن یہ گناہ سے بہرحال نہیں بچ سکتے. جو غیر رسمی طریقہ اپنا کر کے گناہ سے نہیں بچ سکتے. بہرحال فضول خرچی کا گناہ اور خرافات اور رسم و رواج کا گناہ ملنا ہی ملنا ہے, اس سے بہرحال نہیں بچ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اسلامی طریقہ اپنانے کی توفیق دے, نبی کا اسوہ اپنانے کی توفیق دے, سیدھے سادے اور سادگی کے انداز میں رشتوں کو ڈھونڈنے اور نیا گھر بسانے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کے سچا سمجھنے اور سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.